Okay, so बच्चा लोग, so what is there in Gauss law? What is Gauss law telling us? Gauss law is going to tell us something about the electrical flux. Means it is going to tell me how much is the electrical flux which is coming out of a given area, right? So for this, what are the things which we need to understand? So the first thing I need to understand is, because it is going to tell me something about the electrical flux, the first and the foremost thing I need to understand is what is electrical flux. Second thing is I need to understand how is this electrical flux calculated. By simple method means what is the definition of the electrical flux and how do I calculate it, what are the factors on which it depends, and then finally Gauss law, how you can calculate the electrical flux by using the Gauss law. See, one, it is by definition, and the second is by using the Gauss law, right? Both the things which we will be doing today, and it is going to be quite an interesting class. So all of you be alert and sit on your chair with a table and your notes in front of you. Start taking notes. So first we will discuss about what is an electrical flux. See, I'm going to talk about the electrical flux, but talking about the electrical flux will not suffice because electrical flux is not visible at all. You cannot see the electrical flux. So let us move on and see something which is visible to you, right? So what is visible? You can see the water flux, you can feel the air flux, right? See, how do you see the air, water flux? So in order to see the water flux, imagine that you have gone to a field. आप एक खेत में चले गए. खेत में लगा है एक पंप, है ना, बड़ा सा एक पंप लगा हुआ है और इस पंप से एक बड़ी सी धार पानी की, ऐसे बड़ा सा पंप होता है ना वो, और उस पंप के अंदर से ऐसे करके पानी आ रहा है ना, स्ट्रेट आता है. स्पीड में जब आता है तो आप देखोगे कि वो एकदम स्पीड में स्ट्रेट आता है, ठीक है. अब वो है आपका वाटर फ्लक्स, जो आप उसको देख सकते हो, फील कर सकते हो, है ना. आप अपना हाथ उसके अंदर में रख सकते हो, है ना. कभी रखा होगा, खेत पे गया होगा पंप में, है ना. बॉयज, इफ यू कैन रिलेट टू इट, आई थिंक यस, बिकॉज वहां पंप जब आती है, पानी के आता है, तो बड़ी इच्छा होती है कि वहां पर जाके हम वहां पर उस पानी के सामने खड़े हो जाएं, बड़ी दूर से धार आएगी और एंजॉय होता है. यस, अगर आपने किया होगा तो रेज द हैंड्स एंड से यस, आई हैव डन इट. Yeah, okay. So now when you see this, the electrical flux, yes, two participants raise their hands. I know, yeah, I know Manas will do it. Yes, yes. Okay, और कौन है भाई? मानस है, अरे बहुत सारे बच्चे हैं, राजदीप, कुणाल, yes, Mankhudi and all. Yes, it is a real enjoyment. So everybody can relate to what I'm saying, right? So that is water flux. I cannot see the electrical flux, but yes, I can see the water flux. Okay, तो हमने water flux को देखा. अब यहाँ से straight पानी आ रहा है. अब इसमें मैंने आपको दे दिया एक लोहे की रिंग. आपके हाथ में खेलने के लिए एक लोहे की रिंग, इतनी बड़ी वाली है ना, काफी बड़ी सी ना, इतनी बड़ी लोहे की रिंग दे दी और आपको बोला जाओ लोहे की रिंग के साथ में उस पानी के सामने रखो और खेलो, चलो खेलते हैं. तो आपने रिंग को ले गए और इस रिंग को, वो चूड़ी पड़ी है, दे दे बेटा आशीष, वो चूड़ी दे दे. हाँ, यहाँ जस्ट ठीक है ना, ऐसी वाली रिंग है ना, ऐसी वाली रिंग मेरी चूड़ी जैसे, और बाकी बड़ी वाली रिंग है ना. तो ये बड़ी वाली रिंग को आप पानी के सामने ऐसे करके रख रहे हो ना. तो आप ऐसे पानी को रखोगे, पानी के सामने इस रिंग को रखोगे जैसे मैंने रखा, तो यहाँ से पानी आ रहा है और पूरा का पानी आपके अंदर, इस रिंग के अंदर से आपके पास ऐसे करके आएगा. तो मैं बाकी का पानी को भूल जाती हूँ ना, और क्या देखती हूँ, सिर्फ और सिर्फ यहाँ से जो पानी आ रहा है ना उसको देख रही हूँ. तो क्या इसके अंदर से कितना फ्लक्स है वो कैलकुलेट कर सकते हो. अगर मैंने इसका रेडियस बता दिया, इस रिंग का रेडियस बता दिया, तो मैं फ्लक्स कैसे निकालना उसका फॉर्मूला आपको बताऊंगी, है ना. तो आप मुझे बताइए, जितना ज्यादा धार तेज एकदम पानी आ रहा है तो ज्यादा फ्लक्स बाहर निकलेगा इसके अंदर से. अगर मान लो कि कम पानी आ रहा है तो उसके अंदर से कम फ्लक्स निकलेगा, है ना. तो हम क्या कर रहे हैं, पानी का जो स्पीड है, जो जितने स्पीड से जितना जैसे ऐसे करके आ रहा है ना पानी, तो उसको हम फील्ड कहते हैं, है ना. और ये इसका एरिया, जितना ज्यादा फील्ड उतना ज्यादा फ्लक्स, जितना ज्यादा फील्ड उतना ज्यादा फ्लक्स, ठीक है. तो आपने एरिया को बढ़ा देना, एरिया बढ़ा दिया तो फ्लक्स भी बढ़ गया, एरिया छोटा कर दिया तो फ्लक्स भी छोटा हो गया, सिंपल, राइट. तो किस बात पे डिपेंड किया, फ्लक्स पहली चीज डिपेंड किया, पहली चीज एरिया पर. एरिया ज्यादा, एरिया ज्यादा तो फ्लक्स भी ज्यादा, एरिया कम तो फ्लक्स भी आपका कम आएगा. चलो दूसरी बात, दूसरा फैक्टर, दूसरा फैक्टर फ्लक्स किस पे डिपेंड किया. मैंने दो पंप लगाया हुआ है, एक मेरा 1000 वाट का है और एक मेरा 500 का है. तो मैंने 1000 वाट के पहले रखा, उसके सामने पानी आ रहा धड़ 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 धड़,
और उसमें से मैंने फ्लक्स को निकाला, दूसरी बार गई बाजू वाले पाइप के पास और बाजू वाले पाइप के पास में रखा, उसमें 500 वॉट का है ना, तो 500 वॉट के सामने मैंने रखा। अब बताइए मुझे कि किसमें ज्यादा फ्लक्स इस चूड़ी के अंदर से बाहर आएगा, इस रिंग के अंदर से कौन से वाले में से ज्यादा बाहर आएगा? हाँ, 1000 वाले में से कि 500 वाले में से? 1000 वाले में से ज्यादा पानी आ रहा है, तो नेचुरली 1000 वाले में से ज्यादा फ्लक्स। तो दूसरा बात किस बात पे डिपेंड किया कि फ्लक्स कितना ज्यादा या कम आएगा? तो पहला बात एरिया पे डिपेंड किया, दूसरा उसके फील्ड पर डिपेंड किया। कुणाल किस बात पे डिपेंड किया बेटा? फील्ड पर। फील्ड ज्यादा, पानी का फील्ड ज्यादा, तो इसका मतलब है कि उसका जो फ्लक्स है वो भी हमारा ज्यादा हुआ। तो हमने देख लिया भैया कि पानी को लगा करके ये बात हमने फ्लक्स का निकाल लिया। तीसरी बात, तीसरा भी तो कुछ डिपेंड कर रहा है, तो तीसरा कैसे डिपेंड कर रहा है, यहां इसको देखेगा। अब मैंने पहले फ्लक्स को फील्ड को ऐसा रखा ना, पानी कहां से आ रहा है ऐसा, पानी को मैं पेन से दिखा रही हूँ, पानी का डायरेक्शन ये है, पेन का डायरेक्शन। अब मैं क्या कर रही हूँ, पानी का डायरेक्शन तो मैं चेंज नहीं कर सकती ना, तो मैं काम कर रही हूँ, मैं एंगल बदल रही हूँ, एंगल बदल रही हूँ, इस चूड़ी का एंगल बदल रही हूँ। पहले ऐसे था, अब मैंने उसको एंगल चेंज किया, चेंज किया, चेंज किया, चेंज किया, अब एकदम ऐसे रख दिया। तो बताइए फ्लक्स अभी कितना होगा? यहाँ पर जब था तो पूरा का पूरा पानी यहाँ से अंदर जा रहा था, अब मैंने उसको घुमाते गए तो फ्लक्स क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा कि बढ़ते जाएगा? कम होगा। कम होता जाए। अब इस पोजीशन पे आने के बाद क्या होगा बताओ? इस जीरो। में से साइड से पानी निकल जाएगा, इसके अंदर से कुछ भी पानी नहीं जाएगा। तो तीसरा जो बात इस बात पे डिपेंड किया, फ्लक्स जो डिपेंड किया, वो है हमारा एंगल। किस किस के बीच में? तो वही मैं बताने जा रही हूँ कि एंगल इस चूड़ी का और जो पानी का डायरेक्शन था ना, उन दोनों के बीच का जो एंगल था उस बात पे भी डिपेंड किया। पानी देखा आपने, फील किया आपने, और उसको समझ लिए कि भैया कि पानी का फ्लक्स कैसे आएगा। हम यही चीज अप्लाई करते हैं हमारे इलेक्ट्रिकल फील्ड में, जो इलेक्ट्रिकल फील्ड को हम देख नहीं सकते, लेकिन चीज ऐसी है ना, एग्जैक्टली ये ऐसा ही काम करेगा। तो हम इसको देखते हैं कि ये कैसा आपका दिखेगा। तो मैंने आपको इलेक्ट्रिकल फ्लक्स के बारे में कुछ डायग्राम्स नेट से ला करके डाला हुआ है, ठीक है। तो पहली चीज देखिए, इलेक्ट्रिकल फ्लक्स इज द प्रोडक्ट ऑफ, बात भी करेंगे यहाँ पर इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस। ये इस डायग्राम का व्यू को मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेती हूँ, एक मिनट रुको। तो ये मैंने ले लिया यहाँ का इलेक्ट्रिकल फील्ड का लाइंस को हमने ले लिया है ना। यहाँ देखिएगा, इसको मैंने आपको दिखा दिया कि ये जो व्हाइट लाइंस है ना, ये जो व्हाइट लाइंस है ना, ये इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस है, और ये जो वायलेट कलर का आपको दिख रहा है ब्लैक कलर के बैकग्राउंड में, वो हमारा एरिया है। तो आप बताएंगे ये जो फील्ड लाइंस यहाँ से आ रही हैं, इस एरिया को भेदते हुए ऐसे करके निकल गई। तो हमने क्या देखा कि इसके अंदर से हम देखेंगे कि एरिया का जो वेक्टर है वो एरिया हमने कैलकुलेट करना है, लेंथ टू ब्रेड्थ है ना, रेक्टेंगल दिख रहा है, लेंथ टू ब्रेड्थ कोई भी एरिया रहेगा उसका सिंपल जो बचपन वाला फॉर्मूला लगाना और एरिया कैलकुलेट कर लेना। तो इसमें से अपन को पता चलता है कि एरिया इसका और जो फील्ड लाइंस है दोनों का, जैसे ये डायरेक्शन हुआ, देखो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन अभी मैं बताती हूँ, आप बस इतना समझ लेना, यहाँ पर एरिया ये हुआ और ये मेरा फील्ड लाइंस हुआ। देखो हमारा y डायरेक्शन में हमारा फील्ड लाइंस है और एरिया वेक्टर भी हमारा y डायरेक्शन पे है ना। तो यहाँ पर से फ्लक्स कैसे निकल रहा है ये आपने देख लिया। चलिए एक और देख लेते हैं डायग्राम। यहाँ पर आपके पास में है एरिया, ऐसे चौकोन वाला एरिया, और इलेक्ट्रिकल फील्ड इसके सीधे सीधे जा रहा है, तो पूरा का पूरा इलेक्ट्रिकल फील्ड इसके अंदर से होकर के जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब मुझे देखा कि एरिया इंटू फील्ड मिला तो फ्लक्स मिल जाएगा इस दोनों केसेस में। केस नंबर 1 जो ब्लैक बैकग्राउंड में है, और ये जो केस नंबर 2 है वो हमारा किस बैकग्राउंड में है, हमारा येलो वाला जो रहता है ना, ये दोनों में हम लोगों को दिख रहा है कि अगर मुझे फ्लक्स चाहिए, हाँ, अगर मुझे फ्लक्स की जरूरत होती है तो फ्लक्स होता है दैट इज इलेक्ट्रिकल फील्ड मल्टीप्लाइड बाय एरिया, ठीक है। अभी मैंने क्या किया, डायरेक्टली मतलब एरिया वेक्टर और ये जो फील्ड है दोनों को सेम डायरेक्शन पे रखा। आप बोलते कैसे एरिया वेक्टर कैसे हुआ? एरिया तो हमने पढ़ा है भैया स्केलर होता है, तो ये एरिया अभी अचानक से वेक्टर क्यों हो गया? तो एरिया वेक्टर क्या है और इसको हम लोग कैसे लेते हैं पहले ये समझेंगे, और उसके बाद फ्लक्स के फॉर्मूला में वापस जाएंगे। अभी फ्लक्स का फॉर्मूला कंप्लीट नहीं हुआ है,
ठीक है, तो एरिया वेक्टर को समझने के लिए सबसे पहले मैंने एक रेक्टेंगुलर एरिया ले लिया। ए रेक्टेंगल का लेंथ है एल और ब्रेथ है बी। चलो बोलो एरिया कितना होता है? तो एरिया आप लोग बोलोगे दैट इज इक्वल टू एल मल्टीप्लाइड बाय बी, एल इंटू बी, दैट इज इक्वल टू एरिया, है ना? तो अच्छा, लेकिन अगर मैंने बोला कि मुझे एरिया वेक्टर चाहिए, एरिया को मुझे वेक्टर बनाना है, तो वेक्टर जब भी होगा तो सरफेस जो होगा उस सरफेस के एग्जैक्टली नॉर्मल डायरेक्शन पे, यानी कि उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन पर हमारा नॉर्मल होगा। ठीक है, जो भी सरफेस होगा उसका नॉर्मल डायरेक्शन एरिया वेक्टर का डायरेक्शन होगा। सो मैंने लिख दिया एल बी इंटू एन का कैप, मतलब इसका नॉर्मल का डायरेक्शन लीजिए, सरफेस कुछ भी हो उसके परपेंडिकुलर लाइन बना दीजिएगा और आपको मिल जाएगा आपका जो एरिया का वेक्टर, राइट? अब चलिए मैं लेती हूं एक इंक्लाइन प्लेन। इंक्लाइन प्लेन ले लिया। आपके जो प्लेग्राउंड में होता है ना, जिसको जिसमें आप लोग ऐसे जैसे इंक्लाइन प्लेन में जैसे अपन फिसल के जाते हैं, तो वैसी वाला कोई इंक्लाइन प्लेन बन गया। तो इस इंक्लाइंड प्लेन में हमारा नॉर्मल किस डायरेक्शन पे होगा बताइए? इसका नॉर्मल कैसे होगा? इस सरफेस का, देखो ये सरफेस आपको दिख रहा है, ये वाला सरफेस दिख रहा है, और इस सरफेस के आपको परपेंडिकुलर डायरेक्शन पे जो भी सरफेस बनानी है that will be called as the area vector, right? Let me draw this. I know this is the area vector, this is the direction of the normal, right? Exactly, it should be a perpendicular which is forming area, right? So this is the direction of the normal, and the normal will give you the direction of the area, right? Whatever is the surface, right? Now if I have got an area vector, now if it is a curved surface, then what will happen? Now in that case, though this is the curved surface, now in this curved surface, this is an open surface, this is not closed. The first वाला जो दिख रहा है मेरे को, ये closed नहीं है, this is an open surface, right? So ये वाला surface या ये वाला surface, उसमें से एक टुकड़ा मैंने ले लिया। देखो ये टुकड़ा दिख रहा है आपको, एक मिनट, एक आपको यहाँ पर से मेरे को टुकड़ा दिख रहा होगा, देखो ये भी मैंने ब्लैक में दिखाया आपको। इस टुकड़े के अंदर से हम ये बाहर की तरफ भी एरिया वेक्टर ले सकते हैं, अंदर की तरफ में भी एरिया वेक्टर ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। नॉर्मल इधर भी, नॉर्मल इधर भी, दोनों तरफ ले सकते हैं। लेकिन अगर मेरे पास कोई क्लोज्ड सरफेस है, जैसे ये स्फीयर की बात हो गई, तो ये स्फीयर में अगर मैंने कोई भी एरिया कंसिडर किया तो इसका एरिया वेक्टर जो होगा वो सामने की तरफ ही जाएगा, ये अंदर की तरफ नहीं जाएगा। ओनली पॉसिबल इन द आउटवर्ड डायरेक्शन ऑफ द नॉर्मल। सो एरिया वेक्टर जो भी सरफेस रहेगा उसके परपेंडिकुलर ड्रॉ कर, तो तेरे को उसका नॉर्मल का डायरेक्शन होगा, वही आपका एरिया वेक्टर का डायरेक्शन होगा। ठीक है, आपको अभी तीन बातें समझ में आ गई। फ्लक्स निकालना है तो मुझे चाहिए पहला इलेक्ट्रिकल फील्ड, दूसरा चाहिए मुझे एरिया, और तीसरा चाहिए कि इसने एरिया वेक्टर के साथ इलेक्ट्रिकल फील्ड ने कितनी एंगल बनाई। क्यों? क्योंकि मैंने देखा था ना ये चूड़ी वाला, जैसे चूड़ी वाला में देखा था कि एंगल मैंने बदला तो फील्ड क्या होता जा रहा था। देखो एंगल बदला तो क्या हुआ था, फील्ड हमारा पानी का फील्ड आ रहा था ना, पानी का फील्ड में जैसे हमने इस चूड़ी को जो डायरेक्शन बदला तो हमने देखा कि फ्लक्स जो है वो चेंज हो रहा था। तो फ्लक्स भैया चेंज हो रहा है तो दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन कितना चेंज हो रहा है उसके लिए फॉर्मूला चाहिए। तो उस फॉर्मूला के लिए हम लोग लेंगे यहाँ पर, इसको बाद में आती हूँ फ्लक्स का, ये आ गया मेरा फ्लक्स का फॉर्मूला, किधर गया, एक मिनट, हाँ ये रहा मेरा फ्लक्स का फॉर्मूला। तो किन किन बातों पे डिपेंड किया? सबसे पहले कितना इलेक्ट्रिकल फील्ड मिला, इस बात पे डिपेंड किया। दूसरा बात वो डिपेंड किया कि एरिया कितना है ना, तो एरिया कितना है उस बात पे डिपेंड किया। हमने क्या बोला, एरिया वेक्टर कैसे बनता है, जो भी सरफेस बनेगा उसके साथ परपेंडिकुलर बनाएगा। अब इलेक्ट्रिकल फील्ड का आप एंगल सरफेस के साथ नहीं देखोगे, आपको किसके बीच में का एंगल निकालना है, यू हैव टू टेक थीटा। थीटा इज द angle between the area vector and the electric
फील्ड। किन किन बीच में आएगा, किस किस के बीच में एंगल लेना पड़ेगा मुझे लेना पड़ेगा एंगल बिटवीन द एरिया वेक्टर, एरिया नहीं एरिया वेक्टर, दैट मींस नॉर्मल डायरेक्शन, है ना। एरिया वेक्टर इसका मतलब कौन सा वाला डायरेक्शन लेना पड़ेगा, मुझे नॉर्मल वाला डायरेक्शन लेना पड़ेगा, और इलेक्ट्रिकल फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी। सो ये दोनों वेक्टर क्वांटिटी के बीच में अगर मैंने एंगल लिया, उस एंगल को मैंने थीटा बोलना है। तो फ्लक्स कैसे निकालूं, तो फ्लक्स के लिए जो फॉर्मूला होगा दैट इज इक्वल टू इलेक्ट्रिकल फील्ड मल्टीप्लाइड बाय एरिया इनटू cos थीटा, या अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिखूं तो वेक्टर फॉर्म में फ्लक्स का फॉर्मूला होता है दैट इज E dot A. So E dot A can be also written as EA multiplied by cos theta. I copied this diagram from Byju's side. Thank you, Byju's. Okay. So अभी आपके पास में we have got this formula for the electrical flux. This is the electrical flux. Please remember, this is the formula for the electrical flux. Okay. Okay. या ये बीच बीच में आएगा। सो ये जो है वेक्टर्स को देखो, चार्ज की बात करें, चार्ज अगर किसी भी मेटल सरफेस पे होता है ना बेटा, तो मेटल सरफेस के अंदर भी कोई चार्ज दे दो, है ना। अभी मान लीजिएगा कि मेरे पास एक गोला है जैसे इसी के जैसा, है ना। ये गोले के अंदर अगर अंदर मैंने कोई भी चार्ज को डाल दिया तो ये अंदर नहीं रहेगा, ये कूद करके बाहर आ जाएगा। तो मेरी जो फ्लक्स होती है वो चार्ज बाहर, अंदर कोई चार्ज नहीं रहेगा। चार्ज बाहर इसका मतलब है कि मेरा जो फ्लक्स है वो भी मेरा बाहर बाहर जाएगा या बाहर से अंदर आएगा। ये फ्लक्स जो हमेशा हमारा डायरेक्शन एरिया वेक्टर का जो होना चाहिए वो हमेशा बाहर की ही तरफ होगा, अगर वो क्लोज्ड सरफेस है तो। अगर वो क्लोज सरफेस नहीं है, अगर वो क्लोज सरफेस नहीं है और ऐसा ओपन सरफेस है तो कुणाल हम दोनों तरफ का डायरेक्शन ले सकते हैं। इज दिस क्लियर? यस। नाउ आई कम टू, अगर एक सिलेंडर है, हाँ, तो सिलेंडर है तो सिलेंडर में जो फ्लक्स है वो किस प्रकार से दिखाई देगा, और अगर मैंने इस पे लाइन चार्ज रख दिया, बता दूं आपको कि लाइन चार्ज क्या होता है। लाइन चार्ज, आपने एक लाइन बना लिया, स्ट्रेट लाइन बना लिया, और स्ट्रेट लाइन के ऊपर आप एक काम करो, इसने चार्ज चढ़ा देना, है ना। चार्ज मैं पॉजिटिव ही लगाती हूँ यहाँ पर, तो ये हो गया आपका, ये जो प्लस चार्ज सारा लाइन में मैंने अरेंज कर दिया, है ना। तो ये जो चार्ज है इसमें टोटल चार्ज जो दिया मैंने दैट इज इक्वल टू Q, और इस जो भी लंबाई जिसमें आपने इसको बिठाया है से दैट इज इक्वल टू से L, राइट। नाउ आई विल टॉक अबाउट द लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज density. Whenever I talk about this linear charge density, the linear charge density is a measure. Now here another assumption is the charge is distributed, uniform distribution of the charge, है ना। हमने Q divided by L लिया, that is called as the linear charge density, and that if the uniform distribution is there, then this lambda will be a constant. But if this charge is not uniformly distributed, then the lambda will not be constant. Now that is about the lambda, right? The charge distribution, linear charge density. But now the question is not that. Now the question यहाँ पर कि इसके अंदर से फ्लक्स किस डायरेक्शन पे बाहर आएगा, तो आप बोलोगे कि भाई लाइन से चार्ज रखा हुआ है, लाइन से चार्ज रखा हुआ है तो प्लस चार्ज रखे पड़े हुए हैं, तो सबकी फील्ड किस डायरेक्शन पे जाएगी। तुम बोलोगे ऐसे जाएगा, ऐसे भी तो जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे भी तो जाएगा, इस तरफ भी तो आएगा, उस तरफ भी तो जाएगा, देखो कुछ इस तरीके से, है ना। तो मतलब कुल मिला के आप देखोगे कि यहां से सभी जगह से साइड में आ रहा है। अगर इस चार्ज को आप कहीं दूर से देखोगे, इस चार्ज को कहीं दूर से देखोगे तो आपको कैसा लगेगा, एक चमचमाता हुआ, एक चमचमाता हुआ सिलेंडर दिखेगा, और सिलेंडर से सारी फ्लक्सेस आपको बाहर आते हुए नजर आएंगी। इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर? यहां पर से ऐसे, क्या मेरे पास ऐसे यहां से कोई फ्लक्स आएगा? नहीं रे बाबा, सारा तो ऐसे ही जा रहा है, ऊपर कौन सा फ्लक्स जा रहा है, ऊपर तो कुछ भी नहीं जा रहा है। अगर मान लो यहाँ पर रखे तो आखिरी वाला चार्ज का आएगा, मैक्सिमम कहाँ आएगा, यहीं से, है ना। तो ऊपर पे कुछ भी फ्लक्स नहीं दिखाई देगा आपको, यहाँ पर एक लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, तो आपको ऐसा लगेगा कि भैया इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन से नहीं आ रहा, बल्कि यहाँ पर एक सिमेट्रिकल सिलिंड्रिकल सिमेट्री आपको दिखाई देगी अगर वो लाइन चार्ज है तो। ठीक है, अब चलते हैं कि हमारे पास एक क्यूब है,
ट्यूब में से आने वाला फ्लक्स आपको, ट्यूब में से आने वाला फ्लक्स आपको कितना है वो कैलकुलेट करना है। तो मैंने आपको फ्लक्स के बारे में क्या बताया, फ्लक्स के बारे में आपको ये बताया, द फ्लक्स डिपेंड्स ऑन, पहला चीज इलेक्ट्रिकल फील्ड, दूसरा चीज कितना एरिया है, मतलब जिसके अंदर से फील्ड होके जा रहा है, एरिया कौन सा, एरिया कौन सा, एरिया थ्रू विच field is coming out or going in, या तो बाहर आ रहा है या तो वो अंदर जा रहा है। अभी आपको बताएंगे। तो उसके बाद तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर वो डिपेंड करता है इलेक्ट्रिकल फ्लक्स दैट इज इक्वल टू कॉस थीटा, यानी थीटा पे डिपेंड कर रहा है। तो आपके पास में ये क्यूब दिया हुआ है और आपको इस क्यूब को मैं बड़ा करूं, व्यू को बड़ा करती हूँ, और आपको इस क्यूब में से कितना, अरे ऑलरेडी 200 है, चलो ये इस क्यूब में से कितना आपका फ्लक्स बाहर आ रहा है। तीन सरफेसेस दिया हुआ है, ए बी और सी। तो आप मुझे इस डायग्राम में देख के बताइए कि कितना फ्लक्स बाहर आएगा, ए से कितना आएगा, बी से कितना आएगा और सी से कितना आएगा। फील्ड का डायरेक्शन सी को भेद के जा रहा है, बी में लेट के जा रहा है और ए में भी लेट के जा रहा है। तो आप मुझे बताएंगे कि ए में से कितना फ्लक्स बाहर आएगा, बी में से कितना फ्लक्स आएगा और सी में से कितना फ्लक्स आएगा, फिगर नंबर 1 से बताएं जल्दी। मैंने क्या बोला, क्या क्या चाहिए, साइड का जो है लेंथ दैट इज इक्वल टू से एस। तो एरिया कैसे निकालोगे बच्चों, तो एरिया के लिए आपके पास में हो गया साइड का स्क्वायर। अच्छा, इलेक्ट्रिकल फील्ड कितनी है, तो आपने बता दिया कि इलेक्ट्रिकल फील्ड तो मेरे पास ई है ना। और सरफेस ए के लिए, पहले ए के लिए लेंगे, फिर बी के लिए लेंगे और सी के लिए लेंगे, इन सब के लिए थीटा की वैल्यू निकालो। ए के लिए देखो, आपके पास ये जो सरफेस है, ये सरफेस आपके पास बाहर आएगी, है ना। नॉर्मल डायरेक्शन कैसे होएगा, बोर्ड से बाहर, समझ रहे हो, बोर्ड से बाहर आएगा, यस, है ना। तो आपने ए और बी में से फ्लक्स जीरो होगा, बोलता है कुणाल राज। कुणाल तू तो बहुत इंटेलिजेंट हो गया रे। तो यहां से फ्लक्स आपका बाहर आया, यहां से भी फ्लक्स तो यहां से गया ही नहीं, 90 डिग्रीज का हो गया। देखो यहाँ पर 90, यहां से भी 90, है ना। तो नॉर्मल डायरेक्शन तो थीटा पहले केस में ए वाला 90 डिग्रीज है। बी वाले में क्या हो गया भैया, आपका जो नॉर्मल का डायरेक्शन है वो तो यहाँ पर है, अगेन फील्ड और इसके बीच में भी 90 डिग्रीज का हो गया, तो बी में भी 90 डिग्रीज। और सी में की बात करें तो एरिया वेक्टर भी इसी डायरेक्शन पे और फील्ड का भी सेम डायरेक्शन, तो यहाँ पर जीरो। तो जब मैं फ्लक्स की बात करूं, ए में से फ्लक्स कितना आएगा, ए में फ्लक्स जीरो और बी में भी फ्लक्स कितना आ जाएगा, बी में भी फ्लक्स इज इक्वल टू जीरो और सी में एंगल जीरो है, तो फील्ड कितना हो जाएगा, ई मल्टीप्लाइड बाय ए, यानी ई इंटू एस का स्क्वायर। ये पहला वाला प्रॉब्लम हो गया सॉल्व। अब बात आती है कि हमारे पास में सेकेंड फिगर में कैसा लिया गया है, ई एस का स्क्वायर, यस होगा। माने अब आते हैं हम बात, चलो कौन बताएगा मुझे सेकेंड वाले का, कौन बताएगा सेकेंड वाला डायग्राम, ध्यान से देखिएगा सेकेंड वाला डायग्राम। बोलिए, सी और देखो सी का एरिया वेक्टर है और ए में अभी भी कितना दिख रहा है, ए बी और सी, ठीक है। अब मैंने लिखा ए के लिए एंगल कितना है, ए के लिए थीटा 0, बी के लिए थीटा कितना है बेटा, इसका एरिया 45 होगा ना। देखो ये एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर लेना है, तो मेरे को लेना है फील्ड और इसके बीच में एंगल, तो यहाँ पर मेरे को थीटा कितना दिख रहा है, तो बोले 45 डिग्रीज का दिख रहा है। और इसके अंदर में भी सी में भी कितना दिख रहा है, देखो सी का डायरेक्शन ऐसा गया इलेक्ट्रिकल फील्ड का, और परपेंडिकुलर की डायरेक्शन बताऊंगी, एक मिनट। परपेंडिकुलर आप लोग खुद ही बना सकते हो, मैं सही बना रही हूँ कि नहीं बस इतना देख लेना। ये देखो ये ऐसा जाएगा, ये परपेंडिकुलर होना चाहिए सरफेस के, तो मतलब इलेक्ट्रिकल फील्ड और इसके बीच में अगेन कितना आ गया, तो बोले 45 डिग्रीज का आपके पास में आ गया है ना, आ
गया, ये है मेरा 45 डिग्रीज का आ गया। अब बताइए इसमें का फ्लक्स कितना होगा? इसमें का फ्लक्स 0 और इसमें का फ्लक्स बोलो रे बेटा कुणाल, इसमें का फ्लक्स को बताओ कितना आ जाएगा? इलेक्ट्रिकल फील्ड E और स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय cos 45, तो कितना आ जाएगा? दैट इज E S स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 1/√2। इसमें भी कितना आ जाएगा? उतना ही रहेगा, E इंटू एस स्क्वायर इंटू 1/√2। किसी ने लिखा, मैं एक बार देख लेती हूँ। यस, हाँ जी, yes, E square upon √2. हाँ Anshula, it is right answer. Okay, so this is the way how I calculate the flux. Clear? यहाँ तक का everybody with me? यहाँ तक का everybody with us? Now I have got two cases. In this two cases, I have got two cube. In the first case, I have kept the cube and the A, right? That means एक cube को ऐसा रखा हुआ है कि वो C surface से होके जाता है और A और B के बीच में ऐसा रखा हुआ है। तो आप बताइए मुझे कितना फ्लक्स मिलेगा ए से, बी से और सी, जो तीन सरफेस दिया है केस ए में। केस ए में आप देख रहे हो कि ए का जो एरिया वेक्टर है वो सामने जाएगा और इलेक्ट्रिकल फील्ड ऐसे गया, है ना? तो दोनों के बीच में आपको एक 90 डिग्रीज का एंगल मिल रहा है और जिसकी वजह से ए में से कोई फ्लक्स आपका इलेक्ट्रिसिटी वाला नहीं आएगा, है ना? क्योंकि मुझे पता है कि अगर फ्लक्स चाहिए तो सरफेस एरिया चाहिए और इलेक्ट्रिकल फील्ड, ये दोनों आपके पास है। और तीसरा एंगल निकालने जा रहे हो तो सरफेस ए के लिए नॉर्मल, है ना, नॉर्मल एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिकल फील्ड के बीच में जो एंगल है दैट इज 90। तो इसीलिए cos 90 कितना होता है? 0। तो इसलिए फ्लक्स इज इक्वल टू 0। और b जो होता है इसके लिए भी देखो, b मतलब ये ऊपर है ना, ऊपर वाला सरफेस है ना, ये दिख रहा है आपका। और इस सरफेस में भी देखेंगे तो इलेक्ट्रिकल फील्ड और नॉर्मल वेक्टर के बीच में आपको दिख रहा है 90 डिग्रीज का एंगल। सो यहाँ से भी कौन सा फ्लक्स आएगा बाहर? कुछ भी नहीं आएगा, दैट इज इक्वल टू 0। और तीसरा जो होता है इलेक्ट्रिकल फील्ड का डायरेक्शन देखिए और नॉर्मल का डायरेक्शन देखिए, दोनों के बीच में एंगल आपको 0 डिग्रीज का दिख रहा है और 0 डिग्रीज होने की वजह से आपके पास में जो टोटल फ्लक्स होगा cos 0 दैट इज इक्वल टू 1, है ना? cos 0 की वैल्यू होती है दैट इज इक्वल टू 1। सो एस का मतलब है कि आपके पास जो टोटल फ्लक्स होगा दैट इज इक्वल टू E इंटू एस का स्क्वायर। केस 2 में याद है, केस 2 में क्या किया? हमारे पास जो क्यूब था ना उसको पलट दिया। कैसे पलटा? ऐसे पलटा कि जो सी वाला जो फेस है ना, जो यहाँ था, उसने आपके इलेक्ट्रिकल फील्ड के साथ में 45 डिग्रीज का एंगल बना लिया। ठीक है, तो अब मेरे को एंगल किसका चाहिए? एंगल ये वाली नहीं चाहिए, फील्ड और डब्बे के बीच का नहीं चाहिए, मुझे एरिया वेक्टर और फील्ड के बीच में एंगल चाहिए। वो भी उतना ही होगा, है ना? फील्ड और इसके बीच में जितना, क्योंकि 45 डिग्रीज है ना, और कोई एंगल रहने से 30 रहने से 60 हो जाता, लेकिन यहाँ तो 45 है। तो नॉर्मल और हमारा जो सरफेस है उन दोनों के बीच में भी एंगल 45 डिग्रीज का ही होगा। ठीक है, ओके। तो हमने लिख लिया ए, बी और सी तीनों सरफेस है। ए के लिए क्या हुआ, हमारे पास ये जो फील्ड है वो बाहर आएगा। सोच के देखो, ये डब्बा है ऐसा और फील्ड ऐसे जा रहा है ना, फील्ड ऐसे जा रहा है, तो एरिया वेक्टर इस बॉक्स का कैसे आएगा? वो मेरी तरफ आएगा। तो एक फील्ड मेरा ऐसे गया और एक फील्ड ऐसे गया, दैट मींस दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया? तो हमारा वो 90 डिग्रीज का हो जाएगा, है ना? ओके फाइन। सो हमारे पास में जो एंगल सी के लिए 45 है और ए के लिए 90 है, ठीक है? और बी के लिए जरा देखो, तो बी को टर्न किया, सी को टर्न किया 45 से, तो बी भी तो 45 डिग्री टर्न हो जाएगा ना। तो यहाँ जो एरिया वेक्टर बनेगा और जो फील्ड बनेगा, ये नॉर्मल है ना, देखो ये वाला नॉर्मल है, तो इन दोनों के बीच में भी एंगल कितना बनेगा? 45, है ना? तो बी के लिए 45, सी के लिए 45, ए के लिए 90। तो ए से जो फ्लक्स निकलेगा cos 90 0, तो फ्लक्स 0, लेकिन बी और सी के लिए इक्वल फ्लक्स होगा, दैट इज इक्वल टू E इंटू एस स्क्वायर इंटू 1/√2। यस, है ना? तो ये एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आ गया, ठीक है? नाउ जस्ट 1 सेकेंड। इलेक्ट्रिकल फील्ड का E A, है ना? तो E का जो होता है दैट इज न्यूटन पर कूलम और एरिया का होता है दैट इज इक्वल टू मीटर स्क्वायर। सो यू हैव द यूनिट दैट इज न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। एक और यूनिट भी होता है इलेक्ट्रिकल फील्ड का, दैट इज वोल्ट पर मीटर इनटू मीटर स्क्वायर। सो यू हैव गॉट अनदर यूनिट ऑफ द सेम, दैट इज वोल्ट इनटू मीटर। ठीक है, तो वी हैव आंसर्ड दिस क्वेश्चन टिल नाउ, दैट हाउ डू आई मेजर इट, है ना? फ्लक्स को कैसे मेजर कर सकते हैं, ये यहां तक का हमारा कंप्लीट हो गया। अब दूसरा सवाल, अब दूसरे सवाल में ये हो गया
कि हमारे पास कब इस फ्लक्स को पॉजिटिव लिया जाए और कब इस फ्लक्स को नेगेटिव लिया जाए. When is the flux positive and when is it negative? Very important to understand कि when is the flux positive and when is it positive and when is it negative. कब होता है, तो इसको जानने के लिए आप एक ही चीज याद रखोगे, सरफेस आपका कुछ भी हो, सरफेस आपका कुछ भी हो और इसमें से फ्लक्स अगर अंदर गया, अगर फ्लक्स अंदर गया दैट मींस फील्ड लाइंस अंदर की ओर जा रहे, तो आप याद रखना फ्लक्स अंदर हमेशा नेगेटिव. फ्लक्स आपका अगर सरफेस में से बाहर, फ्लक्स बाहर, तो हमेशा याद रखना कि ये पॉजिटिव होगा. अब कॉमन सेंस लगाइए और बताइए कि ये ऐसा क्यों. फ्लक्स नेगेटिव तो अंदर, तो इसको मैंने नेगेटिव ले लिया और मैंने बोला कि अगर फ्लक्स बाहर आ रहा है तो मैं इसको पॉजिटिव ले रही हूं. ऐसा क्यों? वो इसलिए मान लो कि मैंने एक ऐसा स्क्वायर ना लेकर के एक क्यूब लिया रहता, मतलब एक बॉक्स लिया रहता और उस बॉक्स के अंदर मैंने चार्ज रख दिया होता और वो चार्ज मेरा नेगेटिव है, तो आपको फ्लक्स फील्ड लाइंस कैसे आते हुए नजर आते हैं? वो चार्ज कहाँ रखा हुआ है? बॉक्स के अंदर, है ना. बॉक्स के अंदर जब फ्लक्स आपने रख दिया, बॉक्स है आपके पास, उस बॉक्स के अंदर आपने नेगेटिव चार्ज रख दिया, तो आपको जो फील्ड लाइंस है वो कैसे नजर आएंगे? आपको वो फील्ड लाइंस उसके अंदर आते हुए नजर आएंगे. देखो बेटा ऐसे, है ना. फील्ड लाइंस आपको उस बॉक्स के अंदर जाते हुए, अंदर का मतलब क्या? बैठा कौन? नेगेटिव चार्ज, तो अंदर ही ना जाएगा. फील्ड लाइंस अंदर तो फ्लक्स भी अंदर. मान लो कि वही बॉक्स के अंदर आपने पॉजिटिव चार्ज को भर दिया. पॉजिटिव चार्ज को जैसे ही भर दिया तो आपको पता है कि फील्ड लाइंस कहां जाएंगे? बाहर जाएंगे भैया. तो बाहर जाएंगे फील्ड लाइंस बाहर, तो उसको एरिया से मल्टीप्लाई करोगे तो भी क्या रहेगा? पॉजिटिव. तो ध्यान क्या रहेगा कि फ्लक्स अगर मेरा बाहर गया तो इसका मतलब सीधे सीधे समझ जाओ कि ये पॉजिटिव है और नेगेटिव अंदर, फ्लक्स अंदर, नेगेटिव फ्लक्स बाहर, तो पॉजिटिव. इतना याद रखना. बहुत सारे प्रॉब्लम्स अभी आएंगे हमारे पास जिसमें हमको पॉजिटिव या नेगेटिव लगानी पड़ेगी. तो यहां तक का सबको ही क्लियर है, तो हम गॉस लॉ में जाएंगे. ठीक है, तो आज हम ये समझेंगे कि गॉस लॉ क्या बोला, गॉस लॉ किसके लिए एप्लीकेबल है और गॉस लॉ क्या कहता है, क्या क्या फैक्टर्स पर वो डिपेंड करता है. दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गॉस लॉ में. पहली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये होगी कि क्या है गॉस लॉ. पहली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी क्या हो जाएगी? व्हाट इज गॉस लॉ. किसने दिया? तो भाई बाय नेचुरल, मतलब वही जो साइंटिस्ट है गॉस का है, तो गॉस ने दिया होगा. क्या बोला? तो बोले कोई भी जो इलेक्ट्रिकल फ्लक्स होता है ना, तो कोई भी जो इलेक्ट्रिकल फ्लक्स किसी भी क्लोज्ड सरफेस में से आता है, डेफिनेशन बाद में दिखाऊंगी, किसी भी क्लोज्ड सरफेस के अंदर से या अंदर आता हुआ, या तो फ्लक्स बाहर निकले, हाँ, या फ्लक्स आपको किसी भी सरफेस, ये सरफेस है और इसी सरफेस के अंदर आपके पास कई बार फ्लक्स अंदर की ओर भी आती हुई नजर आएगी. गोला जरूरी नहीं है कि स्फीयर हो. सरफेस जो है उसका शेप कुछ भी हो सकता है. सिलेंडर हो सकता है, उसका शेप क्यूब हो सकता है, उसका शेप रेक्टेंगुलर क्यूबॉइड हो सकता है, उसका शेप इररेगुलर भी हो सकता है. ध्यान रखिएगा, गॉस लॉ जो है जरूरी नहीं है कि हम एक सरफेस जो होगा वो सिमेट्रिकल सरफेस के लिए लगाएंगे, ऐसा जरूरी नहीं है. गॉस लॉ इज एप्लीकेबल इवन इफ द सरफेस इज नॉट सिमेट्रिकल. इट इज एप्लीकेबल टू एनी सरफेस. हाँ, क्लास 12 के सिलेबस में सब सिमेट्रिकल सरफेसेस लेंगे ना, आसान बनाएंगे. जिंदगी को काहे तकलीफ में देंगे, हम यहाँ पर जिंदगी को आसान बनाएंगे. और गॉस लॉ जब भी अप्लाई करेंगे हम ये सिर्फ और सिर्फ सिमेट्रिकल सरफेसेस के लिए लगाएंगे, हम नॉन सिमेट्रिकल सरफेसेस के लिए नहीं लगाएंगे. ठीक है, तो ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि इलेक्ट्रिकल फ्लक्स किसी भी क्लोज्ड सरफेस से निकलेगा.
इलेक्ट्रिकल फ्लक्स किसी भी क्लोज सरफेस पे निकलेगा तो डिपेंड करेगा कि उसके अंदर कितना चार्ज बैठा हुआ है, यानी इट विल डिपेंड अपॉन द टोटल चार्ज दैट इज एनक्लोज्ड इनसाइड। मान लीजिएगा कि यहाँ पर क्यू नेट बैठा हुआ है, इट इज डिपेंडिंग अपॉन क्यू नेट डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। बस तो मैं क्या बोल रही हूँ, क्यू नेट का मतलब क्या है ना? तो क्यू नेट जो, एक मिनट, क्यूनेट जो डिपेंड करेगा मतलब टोटल चार्जेस कितने भी अंदर बैठे हो और उस सरफेस में से अंदर बैठे हुए चार्जेस के ऊपर में डिपेंड करेगा। तो ये अंदर बैठे हुए चार्ज क्या है रे बाबा, ये ले, ये है मेरा सरफेस। ये सरफेस को मैंने नाम दे दिया दैट इज इक्वल टू एस। तो अब मैं बोल रही हूं कि यहाँ पर एक मैंने चार्ज दे रखा है और इस चार्ज का वैल्यू है, ले लेते हैं हम लोग इसको 3 कूलम, है ना? ये हो गया मेरा 3 कूलम का चार्ज है। एक मिनट, ये रह गया मेरा 3 कूलम का चार्ज और इसके साथ साथ मैंने एक और कूलम का चार्ज ले लिया दैट इज 2 कूलम का चार्ज, और एक मैंने तीसरा चार्ज ले लिया दैट इज -1 कूलम का चार्ज ले लिया। अब बताना है कि इसके अंदर से नेट फ्लक्स कितना होगा। तो फ्लक्स कितनी बाहर आएगी, तो बोले वो चार्ज टोटल चार्ज पे डिपेंड करता है। क्यू नेट इसका मतलब टोटल चार्ज। तो टोटल चार्ज कितना हो गया, 3 2 5 5 - 1 यानी 4, है ना? तो 4 डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट इतना आएगा। समझ गए? 4 डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, 4 कूलम्स डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट इज द permittivity of a free space, it is the permittivity of the free space, medium change। मान लो अभी एक और चीज कराते हैं इसको। मान लीजिएगा कि मेरे पास यहां पर चार्ज है 1 कूलम, 2 कूलम, -5 कूलम और बाहर रखा हुआ है दैट इज इक्वल टू 10 कूलम्स। तो ये सरफेस में से जो भी फ्लक्स बाहर आएगा बेटा वो किस बात पे डिपेंड करेगा, ठीक है? फ्लक्स जो भी होगा वो सिर्फ और सिर्फ अंदर की चार्ज को कंसिडर करो। ओनली कंसिडर द चार्ज इनसाइड द एनक्लोज्ड सरफेस, बाहर वाले को मत लो, है ना? अगर ये भी फ्लक्स जो बाहर आ रहा है या इसके अंदर का फ्लक्स को देखना है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि बाहर में कितना चार्ज पड़ा हुआ है, हमें नहीं कंसिडर करना है। इसमें सिर्फ और सिर्फ एनक्लोज चार्जेस की बात करना, जो भी तुम्हारे पास में सरफेस है उस सरफेस के अंदर में कितना चार्ज है उसी को कंसिडर करना, बाहर की चार्जेस को कंसिडर मत करना, ठीक है? तो ये कितना आ जाएगा, राइट? इसमें कितना चार्जेस आ जाएगा, जस्ट अ मिनट बेटा, ये आ जाएगा 2 + 3 3 और ये -2, तो आपके पास में जो फ्लक्स है वो कितना आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू -2 कूलम डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। जस्ट अ मोमेंट बेटो, Sure. what are the factors on which the total flux coming out of a surface depend? It depends on only on Charge. charge, वो भी कौन सा, Enclosed. enclosed inside the surface। बाकी किसी पे नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ अंदर बैठा हुआ चार्ज पे डिपेंड करेगा। चल मैंने यहां पर ले लिया Q और यहां से फ्लक्स आप निकाल लो, बताओ कितना आएगा फ्लक्स। फ्लक्स का वैल्यू जो होगा वो होगा, तुम बोलोगे Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है? अब एक काम करती हूँ, चार्ज वही रखती हूँ। अभी मैंने पहले केस में आपके पास एक स्फीयर ले लिया बेटा, अब मैं ले लेती हूँ, यहाँ ट्रायंगल दिख रहा है लेकिन ये पिरामिड है। हाँ,
मैंने अब उठाया एक पिरामिड के अंदर, क्या फ्लक्स वही रहेगा कि सेम रहेगा या चेंज होगा? बोलो रे बच्चा लोग। चेंज चेंज होगा। चेंज होगा कि सेम रहेगा? कितने लोग बोलते हो कि सेम है, कि कितने लोग बोलते हो कि चेंज होगा? मैम सेम होगा। सेम सेम होगा। क्या बोला मैंने आपको? ये बोला कि भैया सरफेस का एरिया को चेंज करो, शेप को चेंज करो, तो आपका जो फ्लक्स है वो चेंज नहीं होगा। वो डिपेंड करेगा सिर्फ चार्ज पर। तो चार्ज अगर सेम है तो फ्लक्स भी सेम। एक काम मैं और करती हूँ, मैंने यहाँ पर जो छोटा सा पिरामिड लिया था, अब इसकी साइज को बड़ा कर देती हूँ, है ना? चार्ज वही, साइज बड़ा, साइज इंक्रीज्ड। क्या होगा फ्लक्स का? इस केस में फ्लक्स कितना होगा? तो फ्लक्स अभी भी चेंज होगा, ज्यादा होगा। सेम होगा। हाँ, ज्यादा हो जाएगा बेटा? नहीं, मैम सेम होगा। यहाँ पर भी एकदम आपके पास में, सभी में आपके पास में सेम होगा। सरफेस को अगर आपने बड़ा कर दिया, शेप को चेंज कर दिया, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर एक ही फैक्टर है। हाँ, आपने चार्ज को बदला तो इसका मतलब है कि फ्लक्स बदलेगा। अगर आपने चार्ज को सेम रखा, देखो इसमें भी और इसमें भी और इसमें भी, और भी आप कोई भी और दे दो, सभी में अगर आपका पास में चार्ज सेम है, तो इस पर्टिकुलर सरफेस में से जब भी फ्लक्स आएगा, तो फ्लक्स विल बी द सेम। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। डज द फ्लक्स coming out of surface A change if the area is changed keeping the charge same? सरफेस को चेंज किया बट हमने एरिया को बढ़ा दिया। तो अब देखिएगा, इस क्वेश्चन को आप लोग करिए। मेरे पास दो स्फीयर्स है ना, मैं थोड़ा व्यू को बड़ा करती हूँ, जस्ट 1 सेकेंड। ये आपको दिख गया स्फीयर? ओके, ये आ गया आपके पास। ये अब ये स्फीयर है मेरे पास, एक छोटा सा स्फीयर है, स्फीयर ए, और उसके बाहर में हमारे पास दूसरा स्फीयर है, दैट इज इक्वल टू बी। हमारे पास जो यहाँ पर है, यहाँ मैंने क्यू नॉट रख दिया। एक मिनट रुक जाओ, मैंने यहाँ पर एक चार्ज रख दिया, दैट इज इक्वल टू क्यू नॉट। तो और इसको बोला दैट इज द सरफेस ए, दिस इज द सरफेस बी। तो आप मुझे बताएंगे कि सरफेस ए से कितना फ्लक्स आएगा? फ्लक्स फ्रॉम सरफेस ए, फ्लक्स फ्रॉम सरफेस ए कितना आएगा? Q naught by epsilon naught. ये हो जाएगा आपका Q naught divided by epsilon naught. This is the surface number A. What about the flux which is coming out of the surface B? What about the flux which is coming out of the surface B? B के अंदर से कितना आएगा आपके पास, बताइए। तो सरफेस जो B है उस पे आप देखिएगा, ये वाली चार्ज भी है और ये वाली चार्ज भी है, दोनों चार्जेस हैं। तो आपको जब भी फ्लक्स निकालना होगा तो ये Q नॉट प्लस Q2 डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट होगा, जो सरफेस B से निकलेगा। ये सरफेस B है। क्या इसका फ्लक्स को Q1 को कंसिडर करें? गॉस लॉ में लगाते समय हम Q1 को कंसिडर नहीं करेंगे, ठीक है? ये फ्लक्स दिखाएगा, ऐसा नहीं कि फ्लक्स नहीं देगा, ये फ्लक्स देगा, लेकिन गॉस लॉ में लगाते समय सिर्फ एनक्लोज्ड वाले को लेना, बाहर वाले को नहीं लेना है, ठीक है? तो ये बात आ गई आपकी इलेक्ट्रिकल फ्लक्स के बारे में, ठीक है? अच्छा, इलेक्ट्रिकल फ्लक्स, तो यहां मैंने आपको नोट्स दे रखा है, जस्ट 1 सेकेंड। हाँ, ये है कि मैम एप्सिलॉन नॉट डिफरेंट होगा कि डिफरेंट है? नहीं बेटा, एप्सिलॉन नॉट क्या पर, एक अच्छा क्वेश्चन है ये अंशुला का, एक मिनट। अब देखो, यहां पर अंशुला ने ये पूछा मुझसे कि क्या ये एप्सिलॉन नॉट चेंज होगा? देखो, एयर, वैक्यूम अगर होगा तो यहां जो फ्लक्स होगा दैट इज इक्वल टू क्यू नेट डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, और एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू होती है वो होती है 8.85 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -12। यूनिट क्या था बोलो? स्क्वायर मीटर। क्या 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 बोलो, जो भी है आप लोग लिखो इसको। एक मिनट मैं आ रही हूँ। मीडियम अगर चेंज हुआ, अगर मीडियम चेंज हुआ, हाँ, तो उस केस में जो फ्लक्स इन द मीडियम जो हो जाएगा, चार्ज तो उतना ही एनक्लोज किया, लेकिन यहाँ पर मीडियम का हो जाएगा परमिटिविटी। ये है, दिस इज द परमिटिविटी ऑफ
फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस, और ये जो होगा इस मीडियम का, दैट इज द परमिटिविटी ऑफ द मीडियम अपन को लेना पड़ेगा, जो भी मीडियम रहेगा उस मीडियम को लेना पड़ेगा अगर आपको फ्लक्स निकालनी हो तो। आगे बात समझ में? या अब आते हैं हम नोट्स के लिए, जस्ट 1 सेकेंड बेटा। या ये है गॉस लॉ का प्रूफ देना उतना जरूरी नहीं है, मैं दे रही हूं वैसे भी, है ना, प्रूफ आपको नहीं आता है बेटा, लेकिन आपको यहाँ पर मैंने दिया हुआ है, ठीक है। ओके, अब यहाँ पर आती है उसका नोट्स। अभी तक का तो समझाना हुआ, यहाँ मैंने प्रूफ और डेफिनेशंस वगैरह आपको लिखवाना है, तो ये हमारा आपका जो क्लास में लिखने वाला, याद करने वाला नोट्स यहाँ पर लिखा हुआ है। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिकल फ्लक्स का डेफिनेशन। इलेक्ट्रिकल फ्लक्स क्या है? इलेक्ट्रिकल फ्लक्स ओवर एन एरिया इन द इलेक्ट्रिकल फील्ड इज द मेजर ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस क्रॉसिंग दैट एरिया। दिस इज द एक्चुअल डेफिनेशन। मैथमेटिकल बताएंगे तो चेंज इन द फ्लक्स इज इक्वल टू E डॉट ds, है ना। देखिए यहाँ अभी तक का मैंने जो बताया, फ्लक्स का वैल्यू बताया था कि हमारे पास E डॉट ds होता है अगर फील्ड यूनिफॉर्म है तो। एक मिनट, यहां आ रहे हम लोग, दैट इज फॉर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिकल फील्ड। तो आपने फ्लक्स को लिया, दैट इज सिंपली E डॉट a, लेकिन अगर मान लो कि मेरे पास कोई तो भी ऐसा सरफेस है और इस सरफेस में से मैंने एक छोटा सा एरिया लिया, और ये जो सरफेस है दैट इज अ वेरी स्मॉल एलिमेंट्री एरिया, एंड दिस इज द एलिमेंट्री एरिया जिसका नॉर्मल वेक्टर दैट इज n है, और ये मैंने एरिया वेक्टर लिया दैट इज इक्वल टू ds, तो इधर से निकलने वाला एक छोटू सा फ्लक्स दैट इज इक्वल टू E डॉट ds, that is E into ds into cos theta, अगर छोटे से एरिया के लिए लेना है तो। अगर फील्ड पूरे एरिया के लिए निकालना है और अगर आपको एरिया निकाल करके बनता है तो क्लोज्ड सरफेस के लिए निकालनी है, तो टोटल फ्लक्स विल डिपेंड ऑन the closed integral of E dot ds। क्लोज्ड सरफेस के लिए निकालते हैं गॉसेस लॉ, तो क्लोज्ड सरफेस के लिए इट इज द क्लोज्ड इंटीग्रल। देखो ये ऐसा साइन बना है ना, देखो इंटीग्रेशन बना करके एक जीरो, तो दिस इज द क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ E डॉट ds, यानी E ds cos थीटा, जो मुझे इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। ठीक है, इलेक्ट्रिकल फ्लक्स इज अ स्केलर क्वांटिटी और उसका डायमेंशन क्या होगा, तो हमने बोला कि द डायमेंशन इज, दैट इज, यूनिट लिखो आप, इलेक्ट्रिकल फ्लक्स का यूनिट लिखिए तो बोले न्यूटन पर कूलम इनटू दैट इज मीटर का स्क्वायर। तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, न्यूटन मतलब फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, ml t टू द पावर ऑफ -2, देन मीटर का स्क्वायर यानी l का स्क्वायर द होल डिवाइडेड बाय at, है ना। तो आपके पास में क्या आ गया, m, l कितना हो गया, तो m का साथ में l का a क्यूब, एंड टाइम कितना हुआ, टाइम कितना हुआ, t टू द पावर ऑफ -2 डिवाइडेड बाय अगेन -1 तो t टू द पावर ऑफ -2 एंड a टू द पावर ऑफ -1। दिस इज द डायमेंशन। ये डायमेंशन आप लोगों को निकालना आता है, ठीक है। नेक्स्ट, गॉसेस थ्योरम इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, द सरफेस इंटीग्रल, ये बहुत ही ज्यादा ये है लर्न बाय हार्ट, ये आपको याद करना पड़ेगा। द सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय एनी ऑफ द सरफेस ओवर एनी क्लोज्ड सरफेस एनक्लोजिंग द वॉल्यूम v in vacuum, total flux over the area is 1 upon epsilon naught times the total charge inside the S, that is flux E is equal to total integral of the closed integral of E dot ds, that is equal to Q total divided by epsilon naught, ठीक है। And then we come to the summary. The summary is Gauss law holds good for any closed surface regardless of shape or size. The surface we choose for the application of Gauss law is called as the Gaussian surface. However, we choose the spherical Gaussian surface because the choice of three simplifying features, dot products, because all the points are spherical, magnitude of E is constant, वगैरह वगैरह, हम लोग यहाँ पर surface spherical ले रहे हैं।
to take care to see that the Gaussian surface chosen does not pass through any of the discrete charge. This is a very important point to note down, which I'll explain in the next class. Okay. Now, this is the notes which you have to write down. Come on, please write down the notes till the next class. I will send you the PDF of this particular class and also the video till here. Right? You just note it down. And electrostatics, this Gauss's law will go for another 4-5 days because it's a very huge chapter and there are a lot of problems to be done. Yes, and till this, I think you all have learned. Today, what did we learn? The first thing we learned in the chapter summary, if I summarize today's chapter, we learned about what? We first learned about the electrical flux. The second thing we learned about was the area vector. Then we said that electrical flux का formula हमने निकाला था, flux is equal to E dot A, और अगर field uniform नहीं है या area uniform नहीं है, so that will be total integral of that is E dot ds. ठीक है, फिर हमने देखा that is the Gauss law. गॉस लॉ में भी हमने फ्लक्स निकाला, ये डेफिनेशन है ना, ये डेफिनेशन है, और ये गॉस लॉ में फ्लक्स निकालने का, वो भी इलेक्ट्रिकल फ्लक्स निकालने का, तो हमने एक फॉर्मूला निकाल लिया था Q net डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट. ठीक है, तो दोनों सेम है, यहाँ डेफिनेशन निकाला और यहाँ पर हमने Q net बाय एप्सिलॉन नॉट निकाला. और गॉस लॉ हमको ये बताता है कि फ्लक्स जो है वो सिर्फ और सिर्फ एनक्लोज चार्ज पर डिपेंड करता है, किसी और चीज पर डिपेंड नहीं करता है. ये था हमारा आज का थ्योरी का पूरा एक छोटा सा समरी, है ना. आज आप नोट्स लिखोगे और नोट्स लिखने के बाद आप इसको पॉइंट वाइज अपने शॉर्ट नोट्स बनाओगे, है ना. तो अपने शॉर्ट नोट्स बनाओगे तो आपके दिमाग में बैठेगा. यस, डोंट फॉरगेट शुवित निर्वाण, राइट. जस्ट 1 सेकेंड. ओके, प्लीज ऑल ऑफ यू राइट डाउन कितना आपको समझ में आया इन द चैट बॉक्स.